Hello everyone, welcome back to my channel. As you all know, my name is Arya Asopa, and today we are going to start with a very interesting chapter, that is chapter 2, General Auditing Principles and Auditors' Responsibilities. So, as you all know that there are certain standards on auditing which an auditor needs to keep in mind while performing the audit of financial statements and in general also. So basically we are going to study about the general principles that auditor needs to keep in mind and his responsibilities. So all of that attached to the certain essays that we are going to study in this particular chapter. So let us just get started. What all essays we are going to study? Let's see. So the first essay that we are going to study is essay 240, which is auditor's responsibility with respect to fraud in respect to the audit of financial statements. Essay 250, which is consideration of laws, regulations in audit of financial statements. Essay 260 is communication with those charged with governance. Essay 299 is joint audit of financial statements, and essay 402, which is basically audit considerations relating to an entity using a service organization. All of that we are going to study right from the first one, which is essay 240. All of these we are going to link with essay 200. Essay 200 is overall responsibilities of the auditor while conducting the audit of financial statements in respect to essays, in accordance with essays. So हम लोग essay 200 के grounds पे ये सारी responsibilities पढ़ रहे हैं, and these responsibilities are also attached to certain essays जो हमने अभी ऊपर पढ़े, which we are going to study further in this chapter. So without wasting any time, let us just get started with the first essay जो हम पढ़ने वाले हैं, which is essay 240. Very interesting, very important from exam point of view also and from practical perspective also. So essay 240 is the auditor's responsibilities relating to fraud and audit of financial statements. So basically there are a lot of things that an auditor needs to keep in mind while auditing the financial statements, but the most important one is fraud. Now जब हमने पढ़ा था कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो हमने फर्स्ट थिंग दैट वी स्टडीड इज टू डिटेक्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट विच माइट बी ड्यू टू एरर और फ्रॉड. ठीक है. सो बेसिकली फ्रॉड इज अ wider term. It is basically it involves it can involve actually the employees also, it can involve the management also, it can involve outsiders also. So basically fraud का मतलब होता है कि कुछ गड़बड़ है. ठीक है. अब वो गड़बड़ कैसे पता लगाओगे? That is the responsibility of auditor. So basically whenever an auditor comes across such issues, certain things while auditing the financial statements which are not ordinary, which are out of ordinary, which are not natural, they then have to take certain steps in order to detect the fraud and in order to correct the misstatements, if it is possible to correct the misstatements. Otherwise you have to just inform it to the regulatory authorities, to the top management, and then if it is in your hands, you can also exit from the organization as an auditor. So all of this we are going to study. Let's just start. सबसे पहला है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एसे 240. नाउ कीप दिस इन माइंड, अंडरस्टैंड दिस कि एक ऑडिटर का फ्रॉड के रिलेशन में क्या ऑब्जेक्टिव है. सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना और असेस करना कि रिस्क्स क्या हैं फ्रॉड होने के. ठीक है. देन आफ्टर यू हैव असेस्ड कि इतना रिस्क है, सपोजिटली कि इंटरनल कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे हैं, या फिर सपोजिटली देयर इज बिकॉज देयर इज लेट्स से इनहेरेंट रिस्क, तो कितना रिस्क हो सकता है फ्रॉड का. देन सपोज देयर इज सैम्पलिंग एरर्स, तुम्हें लगता है कि सैम्पल्स तुमने जो कलेक्ट किए हैं दे आर नॉट इनफ, सो कितना रिस्क हो सकता है फ्रॉड होने का और फ्रॉड डिटेक्ट होने का. तो बेसिकली दैट वी हैव टू
identify and we have to assess. Then after that we have to obtain sufficient appropriate audit evidence about the assessed risks कि basically कोई fraud detect हो रहा है या नहीं हो रहा है, through designing and implementing the responses to those risks. And finally we will respond appropriately to the identified or suspected fraud. अगर कोई fraud होता है तो फिर we have to identify, we have to then respond to such fraud. अब फ्रॉड होता क्या है, बहुत हमने पढ़ लिया, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रॉड होगा तो क्या करना है ऑडिटर को, हम पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रॉड को ही डिटेक्ट और करेक्ट करना है, हम पढ़ते आ रहे हैं मिस स्टेटमेंट्स का रिस्क होता है विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड और एरर. तो फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड इज एनी इंटेंशनल एक्ट, कोई भी ऐसा काम जो जानबूझ के किया जा रहा है बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स अमंग मैनेजमेंट, those charged with governance, employees or third parties also, involving the use of deception. कुछ ऐसी टेक्निक्स तुम यूज कर रहे हो जिससे डिसीव कर रहे हो तुम दूसरे पर्सन को. यहाँ पे दूसरा पर्सन कौन हो सकता है? द आउटसाइडर्स, द शेयर होल्डर्स, ऑल द स्टेक होल्डर्स बेसिकली, टू ऑब्टेन एनी अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज. तो अपने लिए तुम कोई इलीगल या अनजस्ट एडवांटेज ऑब्टेन करने के लिए इफ यू आर परफॉर्मिंग समथिंग, दैट इज फ्रॉड. अब देखो, मिस स्टेटमेंट्स जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो दो तरीके से हो सकते हैं. वी हैव बीन स्टडीइंग दैट ऑल्सो. फ्रॉड के थ्रू हो सकता है, एरर के थ्रू हो सकता है. फ्रॉड और एरर में एक थिन लाइन होती है. फ्रॉड इज इंटेंशनल, एरर इज अनइंटेंशनल. ठीक है, बस that is the only difference. Basically, fraud is a broader legal concept. Auditor concerned with fraud that causes material misstatement. क्या होता है? फ्रॉड ज़रूरी नहीं है कि मटीरियल हो हमेशा हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट हो. फ्रॉड हो सकता है कि किसी बेचारे एम्प्लॉय को रुपए की ज़रूरत थी, उसने 500 रुपये एम्बेजल कर दिए. दैट इज़ नॉट मटीरियल. हम ठीक है उसको बता देंगे, उसको बोल देंगे कि अब तुम करेक्ट कर लो अपना मिस स्टेटमेंट, तो अपना मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेक्ट कर लो, तुमने जो फ्रॉड किया है उसको कॉम्पनसेट कर लो, वी कैन डू दैट. बट दैट डज नॉट कंसर्न अस. ठीक है, वो मटीरियल नहीं है, इसलिए हमारा इट डज नॉट मैटर टू अस एज वेल. ओनली द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड मैटर. Now, fraud can be of two types. First is misstatements which result from fraudulent financial reporting, which basically means कि तुमने financial reports जो हैं तुम्हारी financial statements हैं उनको fraudulently बनाया है जिसकी वजह से misstatement हुई है. Second होता है misstatement resulting from misappropriation of assets. तुम्हारे जो भी assets हैं, for example cash is an asset, डेटर्स आर योर एसेट, तो उनमें अगर बेसिकली कोई मिस स्टेटमेंट हो रही है उनकी वजह से, उनको मिस एप्रोप्रिएट करने की वजह से, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रॉड ऑफ वन सच काइंड. अब मिस एप्रोप्रिएशन ना बहुत टाइप्स की होती है एसेट की. फॉर एग्जाम्पल लीडिंग, लैगिंग, ऑल ऑफ दीज, जैसे एम्बेजलमेंट, ये सब कुछ, कैश का हेरा फेरी, ये सारा कुछ क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, all of those are resulting from misappropriation of assets. और basically these are only which अब देखो, fraud जो होता है ना वो 3 factors के through हो सकता है, which basically is incentive और pressure to commit fraud, which basically means या तो तुम्हारे पास opportunity थी, ठीक है, एंड या फिर कोई rationalization हो रहा है एक्ट का, which basically means 3 चीज़ें हैं. 3 फैक्टर्स पे एक पर्सन फ्रॉड कर सकता है. फर्स्ट इज प्रेशर टू कमिट फ्रॉड, कि अगर उसको ऐसा लगता है कि हमारे लेट्स से मैनेजमेंट थिंग्स कि लास्ट टाइम तो हमारा टर्नओवर बहुत ज़्यादा था, इस बार टर्नओवर कम आया है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ईयर एंड पे वो एडवांसेस दिखा सकता है या कुछ और दिखा सकता है. तो दैट बेसिकली मीन्स दैट यू हैड अ प्रेशर टू कमिट फ्रॉड. ठीक है, तुम्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेटर व्यू में दिखाना था, इसलिए तुम्हें फ्रॉड करना पड़ा. सेकंड है अ परसीव्ड अपॉर्चुनिटी. तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी दिखी तुम्हें कि अरे इतना पैसा तो ऐसे ही पड़ा है, मैं इसको एम्बेजल कर लेता हूँ, बाद में वापस रिटर्न कर दूंगा. सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी यू गॉट एंड यू यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी, यू मिस यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी.
in this case. And then there are some rationalization of act which basically means कि तुम्हारे आसपास के लोग फ्रॉड कर रहे हैं तो तुम्हारे पास एक रीजन है फ्रॉड करने का कि वो भी कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. तो यू आर रैशनलाइजिंग दैट एक्ट. तुम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. लेट्स स्टार्ट विद वी अंडरस्टूड कि 3 चीज़ें होती हैं एंड आई ऑल्सो told you what all those 3 things are. Next is basically how fraudulent financial reporting may be caused by entities. अब देखो fraudulent financial reporting होती कैसे है. बहुत सिंपल है. या तो तुम मैनिपुलेट करो, फॉल्सिफाई करो या ऑल्टर करो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को. तुम जर्नल एंट्रीज गलत डाल दो, तुम लेट्स से लेजर अकाउंट्स को इधर चेंज कर दो, ठीक है, बैलेंसेस इधर उधर कर दो, या फिर तुम इनवॉइसेस ही फेक जनरेट करने लग जाओ. ऑल ऑफ दोज थिंग्स इफ यू आर ऑल्टरिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. तो जिससे तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए तुम उन्हीं को चेंज कर रहे हो, ठीक है, तुम उन्हीं के ऑल्टर कर रहे हो. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तुम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, ये सब कुछ ऑल्टर कर रहे हो. दैट इज रॉन्ग. Next, if you are misrepresenting in or intentional omission from the financial statements of events, transactions or other significant information, या फिर तुम intentional misapplication कर रहे हो accounting principles का relating to amounts, classification, manner, presentation, disclosure. मैम आप तो पढ़ के बोल रहे हो, हमें बताओ तो सही कि होता क्या है. मैंने बताया तुम्हें कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होती है, अकॉम्प्लिश कैसे कर सकते हो. तो सबसे पहले तुम क्या कर सकते हो, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या फिर जो सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम उनको मैनिपुलेट कर लो, फॉल्सिफाई कर लो या ऑल्टर कर लो, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, तुम देखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस, अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, उसमें ओमिशन कर लो, ठीक है. उसमें कुछ भी ओमिशन इन द सेंस कि कुछ हटा दो, कुछ दिखाओ ही मत, ठीक है. कोई चीज़ें, कोई बेसिक लेट्स से कोई ट्रांजैक्शन था उसको तुम छुपा दो. दैट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन. नेक्स्ट इज अगर तुम कोई इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन कर दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, विच बेसिकली मीन्स दैट तुम लेट्स से डेप्रीसिएशन का मेथड चेंज कर दो, या फिर तुम कोई और अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल ले लो, ठीक है, जैसे प्रूडेंस हो गया या फिर कोई भी समझ लो अपने मन से, और तुम उसमें इंटेंशनली उसको मिसअप्लाई करो जिसकी वजह से अमाउंट में, क्लासिफिकेशन में, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर में कोई भी डिफरेंस आए. दैट्स रॉन्ग. Now it involves a management override of controls that otherwise may appear to be operating effectively. ठीक है, बेसिकली देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता कौन है, मैनेजमेंट करती है. तो ये टाइप का फ्रॉड कौन कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है. मैनेजमेंट अगर जो कंट्रोल्स है, इंटरनल कंट्रोल्स है, उसको ओवरराइड कर दे, दे डू समथिंग अगेंस्ट इट, दैट मे appear to be operating effectively, that is called as a fraudulent financial reporting. Now fraud can be committed by management overriding techniques also. जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल्स बताए वही सेम एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज, गलत, झूठी, फिक्टिशियस मतलब गलत या झूठी एंट्रीज तुम डाल रहे हो, पर्टिकुलरली क्लोज टू द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जिससे तुम अपने जो रिजल्ट्स तुमने अपने माइंड में सेट कर रखे थे दैट यू अचीव. इनएप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशंस या फिर चेंजिंग जजमेंट्स, जैसे तुम बोल दो कि अब देखो ऐसा हो सकता है ना कि तुम एक मशीन तुमने खरीदी, तुम उसकी लाइफ जो है वो पहले तुमने सोचा था 5 साल होगी, अब तुम बढ़ा के उसको 10 साल दिखा दो जिससे डेप्रीसिएशन कम चार्ज करना पड़े इस पर्टिकुलर ईयर में. तो ये सारी चीजें ना, दीज आर ऑल्सो फ्रॉड, क्योंकि तुम अपनी अजम्पशंस चेंज कर रहे हो, तुम अपनी जजमेंट चेंज कर रहे हो. इफ यू आर omitting, advancing or delaying recognition in the financial statements of event transactions that have occurred during the reporting period, that's also wrong. ठीक है.
if you are concealing या फिर not disclosing the facts that could affect the amounts recorded. Obviously, अगर तुम्हें पता है कि तुम ये पर्टिकुलर चीज़ अगर डिस्क्लोज करते हो तो ये चीज़ डिस्क्लोज करने से ही तुम्हारी अमाउंट्स में डिफरेंस आएगा. फॉर एग्जांपल, तुम्हें पता है कि एक पर्सन जो है वो तुम्हारा डेटर था और अब वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उससे 1 रुपए भी तुम्हें रिसीव नहीं होंगे. यू आर प्रिटी श्योर अबाउट इट. तुम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये अभी नहीं दिखा रहे हो. दैट इज फ्रॉड. इन अ वे दैट इज फ्रॉड. इफ यू न्यू और सर्टिफिकेट आ गया है, सब कुछ आ गया है, तुम्हें पता है, तुम्हें उसने बता भी दिया है कि देखो मैं रुपए नहीं दे पाऊंगा, तुम्हें बिल्कुल ही नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास है ही नहीं. दैट इज ऑल्सो फ्रॉड बिकॉज यू आर कंसीलिंग a fact that could affect amounts in the financial statements. Next is how misappropriation of assets can be accomplished by the entities. So basically misappropriation of assets कैसे होते हैं वो जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि misappropriation का मतलब क्या होता है. Basic meaning होता है theft. Basically जो कंपनी के assets हैं उनको तुम कुछ ऐसे यूज़ कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, परपेट्रेट कर रहे हो. कौन कर सकता है? एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं जिनके हाथ में है कंपनी के एसेट्स का यूज़, जिनके हाथ में है वही तो कर सकते हैं. तो बेसिकली कौन कौन कर सकता है? एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं, मैनेजमेंट भी कर सकता है. रिलेटिवली एम्प्लॉयज़ करते हैं स्मॉल और इमटेरियल अमाउंट्स में. कैसे कर सकते हैं? देखो एग्जाम्पल मैंने आपको एक दिया था विच इज़ एम्बेजलिंग द फंड्स. तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी है कि एम्बेजल करके. सेकंड होता है कि जो फिजिकल एसेट्स हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको स्टील करना, विच बेसिकली मीन्स लेट्स से सपोजडली एक कंपनी है जिसमें 2,500 कार ऐसे ही पड़ी रहती हैं. ठीक है, कार्स पड़ी रहती हैं 2,500 फॉर द पर्पस ऑफ लेट्स से दे आर नॉट इन्वेंट्री, दे आर let's say you have a business of hiring. तो तुम्हारे पास कार्स पड़ी हैं 2,500 के करीब. एम्प्लॉय एक कार उठा के ले गया, तुम्हें नहीं पता चल रहा है, तुमने काउंट नहीं किया, तुम्हें नहीं पता चला. सो दैट इज कॉल्ड स्टीलिंग. फिजिकल एसेट्स भी हो सकते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है. नेक्स्ट इज कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड. बेसिकली तुम्हें कोई गुड्स या सर्विसेज अगर अभी तक मिले ही नहीं है, ठीक है, उसके लिए भी तुम बोल रहे हो कि लाओ रुपए दे दो. सो दैट फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मेकिंग पेमेंट टू फिक्टिशियस वेंडर्स, इट माइट हैपन, ठीक है, कि तुमने फेक लेट्स से किसी भी पर्सन से फेक बिल्स जनरेट करवा लिए, फेक इनवॉइसेस बनवा लिए और तुम उसको पेमेंट कर रहे हो. एक्चुअल में पेमेंट हो ही नहीं रहा है, तुम्हारे पास ही वो सारा फंड जा रहा है. दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, दिस इज ऑल्सो अ केस. नेक्स्ट इज इफ यू आर यूजिंग एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज. चलो तुमने वो कार जो है वो चोरी नहीं की, बट यू आर यूजिंग इट टू गो टू शिमला ऑन अ फैमिली वेकेशन. दैट्स रॉन्ग. ठीक है, यू कैन नॉट डू दैट. नेक्स्ट इज मिस एप्रोप्रिएशन. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फ्रॉड को प्रिवेंट करने की और डिटेक्ट करने की. कभी मत बोलना कि ऑडिटर की होती है, ऑडिटर की नहीं होती है. सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटेक्ट एंड टू प्रिवेंट द फ्रॉड इज विद द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड एट द कंपनीज लेवल, who deal in these things. जैसे सबसे पहले those charged with governance and with the management. Both of them are responsible. ठीक है, management with the oversight of those charged with governance, they have to place strong emphasis on prevention of fraud. अगर नहीं हो पा रहा है, सबसे पहले तो देखो फ्रॉड को प्रिवेंट करने पे ध्यान दो कि फ्रॉड हो ही ना. अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं फ्रॉड होने के चांसेस हैं, देन यू नीड टू डिटेक्ट द फ्रॉड एंड करेक्ट द फ्रॉड. ठीक है, फ्रॉड डेटरेंस क्या होता है? इट इज बेसिकली persuading individuals not to commit fraud because of likelihood of detection या punishment. तुमने बोल दिया अपने एम्प्लॉयज़ को अगर किसी ने भी फंड्स एम्बेजल किए
या फिर यू सेट एन एग्जाम्पल, किसी ने एक बार फंड्स एम्बेजल किया, तुमने उसको पुलिस में दे दिया, चाहे उसने 500 रुपए, चाहे उसने 5 रुपए के ही फंड्स एम्बेजल किए, तुमने उसको पुलिस में दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स कोई भी एम्प्लॉई अगर फंड्स एम्बेजल करने की कोशिश भी करना चाहेगा वो नहीं करेगा, बिकॉज ही विल बी स्कैर्ड. तो इफ दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉड डेटरेंस. तो इन दोनों पे मेजर फोकस होना चाहिए. एंड देन ऑल्सो इफ यू थिंक देर आर सर्टेन लेट्स से इंटरनल कंट्रोल इश्यूज या फिर कोई भी प्रॉब्लम लगती है, तो यू हैव टू डिटेक्ट द फ्रॉड एंड यू हैव टू करेक्ट इट ऑल्सो.